Good morning, students. Today we are going to read the poem The Balloon Man of Unit 5. So, dear children, the poem is about a young girl who talks about a balloon man whom she often meets in the market. He carries balloons of different colors and sizes. The girl wishes that he would let the balloons free someday, which would fly high in the sky. Okay, this is the summary of the poem. Now, let's understand the poem. I will explain the poem in English and Hindi also. Okay, so listen carefully, beta. The balloon man, गुब्बारे वाला आदमी. He always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. Okay, beta, underline the words market days and market square. In the first stanza, the girl is telling about the balloon man who always comes when there is a market days. Okay, he comes with a bunch of beautiful balloons and stays there without thinking of having food and lunch. Okay, he always comes on market days. वो हमेशा जब बाजार लगता है तब उन दिनों आता है. एंड होल्ड्स बैलून्स अ लवली बंच, और उसके वो गुब्बारों का बहुत ही सुंदर बंच पकड़े हुए होता है. एंड इन द मार्केट स्क्वेयर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. बेटा, मार्केट स्क्वेयर हियर मीन्स एन ओपन प्लेस वेयर ए मार्केट इज हेल्ड. और हम इसको वैसे यहाँ पर हम इसका मीनिंग एक बाज़ार का चौराहा लेंगे. इसको हम बाज़ार का चौराहा कहेंगे, मार्केट स्क्वेयर. ओके, तो वो चौराहे पर रहता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और बिना अपने खाने की सोच, मतलब उसको यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि वो उसे खाने की भी परवाह नहीं है, वो अपने खाने के बारे में भी नहीं सोचता, ऐसा दिखाई देता है. ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे. बेटा, in this stanza underline the word cards and get between. Okay, now what is in the second stanza. In this stanza the young girl is feeling joyful about the different colors of balloons that he is holding. They are red, purple, blue and green. The balloons are red, purple and blue and green. Okay, and when it is a sunny day, this line means when it is a bright sunny day with clear sky. Okay, there are lots of people and carts in the market who get between the girl and the balloon man. Okay, and due to these people and carts, she is able to see the balloons shining brightly from a distance. Okay, in Hindi now. गुब्बारे वाले के पास जो हैं बहुत ही कलर के विभिन्न रंगों के गुब्बारे हैं. वो गुब्बारे लाल हैं, पर्पल हैं, नीले हैं और हरे हैं. ओके, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे,
और जब एक सनी डे होता है, मतलब जब एक चमकदार दिन, ब्राइट दिन, धूप वाला दिन होता है, जबकि बारिश ना हो और आकाश बिल्कुल साफ हो, उसे हम क्या कहेंगे? सनी डे। ओके, और जब सनी डे होता है, द कार्ड्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, और वहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और बहुत सारी लोगों की भीड़ होती है। कार्ड्स मीन्स यहाँ बेटा रेहड़ियाँ होंगी, जो सामानों से लदी हुई रेहड़ियाँ होती है ना, जिसमें सामान बेचा जाता है रखकर, उसको हम कार्ड्स बोलते हैं। एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे, और उस कार्ड्स और लोगों के भीड़ के कारण ही उसे बीच में से निकलना पड़ता है, उनके बीच में से निकलना पड़ता है गुब्बारे वाले के पास जाने के लिए। और इन्हीं के कारण यू सी देम शाइनिंग फार अवे, तुम उन्हें दूर से ही चमकते हुए देख सकते हो, देखोगे या फिर ओके देखोगे। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Okay, now in the third stanza, the girl is talking about different sizes of the balloons. The balloon man have some big balloons or some small balloons also. Okay, and all tied together with a string, and all the balloons are tied together with a string. String means rope or thread. All the balloons are tied together with a thread, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. And if there is a wind, all the balloons start tugging. Okay. Now in Hindi, and some are big and some are small. कह रहे वो लड़की कहती है कि गुब्बारे वाले के पास कुछ तो बड़े गुब्बारे हैं और कुछ छोटे गुब्बारे हैं, और वो all tied together, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। tied together means एक साथ बंधे होना, विद अ स्ट्रिंग, एक थ्रेड से बंधे हुए हैं सभी गुब्बारे। एंड इफ देयर इज ए विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, और जब बहुत हवा चलती है तब वो टग करना शुरू कर देते हैं। टग मीन्स बेटा टू पुल विद फोर्स। आपने कई बार देखा होगा ना, जब गुब्बारे हाथ में होते हैं तो जब हवा चलती है तो वो गुब्बारे किस तरह से हाथ में से खींचे चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर वो सेंस आएगी। ठीक है, जब हवा चलती है तो गुब्बारे जो हैं खींचा तानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई। नाउ let's see what is in the last stanza. The girl wishes in this stanza. Okay, the girl wishes that the balloon man will let the balloons free. He will let them go means he will let the balloons free, and we shall see, and we shall stand and watch them from the ग्राउंड। बिलो का मतलब यहाँ पर ग्राउंड आ जाएगा। फ्रॉम बिलो मीन्स नीचे से, नीचे कहाँ पर? ग्राउंड पे से। ओके, फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द गर्ल, द कलरफुल बलून्स वुड लुक वेरी प्रिटी इन द स्काई। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ इन हिंदी, someday perhaps he will let them go। अब वो लड़की सोचती है, ऐसी इच्छा रखती है कि भाई किसी दिन वो गुब्बारे वाला जो है आदमी, वो उन गुब्बारों को फ्री कर देगा, मतलब छोड़ देगा हवा में। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन्हें ऊपर ऊंचा उड़ता हुआ देखेंगे।
एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और नीचे खड़े होकर उन्हें ऊपर उड़ता हुआ देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो आकाश में बहुत ही सुंदर लगेंगे। ओके, आई होप बेटा you understand the poem. I have explained the poem in Hindi and in English. I hope you understand. Now come to the new words. First one is bunch. Bunch means bundle or cluster. Square. Square means market square. Okay, इसको अब हिंदी में चौराहा भी बोल सकते हैं बेटा. Sunny. Sunny means bright, and tug means to pull with force. Okay, so that's all for the day. I hope you understand the poem. Now goodbye. Tomorrow we will do the exercise of the poem. Okay, bye bye.